سعودیہ سے میرا تعلق ہے، تو آپ کو سنتے ہیں کافی عرصے سے، تو جی خواہش تھی کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ جی تو ہم مطلب پردیش میں رہ کے اپنے وقت کے امام کے لیے کیا کر سکتے ہو؟ کوئی ایسے عمل بتائیں جس سے ہماری معرفت میں مزید اضافہ ہو۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے انہوں نے، کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر ملک میں رہتے ہیں، پردیس ہے ظاہر، تو ہم اپنے امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں جس سے امام کی معرفت میں اضافہ، دیش میں ہو یا پردیش میں ہو۔ ایک بات ذہن نشین رکھ لو کہ اگر بندوں کا بنایا ہوا کیمرہ آپ کو دیکھتا ہے تو پھر عین اللہ بھی آپ کو دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ کی کیا بات ہے؟ یہ بندوں نے بنایا ہے نا، یہ موبائل کا کیمرہ وہ کیمرہ بندوں نے بنایا ہے، تو اتنے خدا نے ان کو شعور دیا، اتنے طاقتور ہیں، ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، تو عین اللہ بھی ہر چیز دیکھتا ہے۔ کوشش کرو ہر جگہ اپنے امام کو محسوس کرو، کوئی کام کرنے سے پہلے سوچ لینا وہ دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ معرفت امام علی شہزاد، معرفت امام میں اضافے کا سبب بنے گا کہ اپنی آنکھیں پاک رکھنی۔ دوسرا کوشش کرو کسی سے بحث و مباحثہ مت کرو۔ اچھا یہ جو پیچھے دھوپ میں بیٹھے ہو، اگر میں گزارش کروں ادھر آ جاؤ، ادھر اس طرف آ جاؤ، گرمی بہت ہے، نیچے بیٹھنا پڑے گا، ذرا مولا خوش رکھے آپ کو، نیچے بیٹھنا پڑے گا، یا چٹائی بچھوا دو ادھر۔ اچھا آؤ، گرمی بہت ہے، اچھا نہیں لگ رہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، بیوی کے مہمان گرمی میں بیٹھے، مولا خوش رکھے، مہربانی۔ بیٹا آپ بھی آ جاؤ، آپ کو دھوپ لگ رہی ہوگی، میرے بچے آ جاؤ، میرے بچے آ جاؤ، بہت جگہ ہے، دیکھو نا اپنا ہی ہے سارا، مولا کا ہی ہے، کچھ ادھر آ جاؤ، کچھ بسم اللہ بسم اللہ اکثر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل وعلم۔ ہاں بسم اللہ، جہاں جگہ ملے خیر سے بیٹھ، بڑا اچھا ہو گیا ماشاءاللہ۔ اچھا جی پہلی بات ہے، سرکار کی ہر جگہ موجودگی کو محسوس کرو، بسم اللہ، کیونکہ مومن وہ نہیں جو غلطی کر کے معافی مانگے، مومن وہ ہے جو غلطی سے بچ کے شکر ادا کرے۔ میرے ہاتھ سے کیا بات ہے، کیا بات ہے، غلطی کر کے معافی مانگنا یہ مومن کا شیوا نہیں، غلطی سے بچ کے مہربانی، یہ مومن کا شیوا ہے۔ دوسری چیز، اپنی کمائی کو امام زمانہ کے نام کا دو، 100 کماؤ، 100 کماؤ، 500 کماؤ، 1000 کماؤ، 10,000 کماؤ، سرکار کے نام کر دو، یہ میرا نہیں، یہ ان کا صدقہ ہے، بسم اللہ جو کماؤ۔ اب اس صدقے میں سے اپنے لیے استعمال کرتے وقت سوچو خدایا ان کا صدقہ کھا رہا ہوں، کھا کے حلال کرنے کی توفیق تو دے۔ بڑی قیمتی بات ہے، پہنچ گئے تو سلام دے، کیونکہ دیکھو نا، میں اگر ان کو علی شہزاد کو اپنی طرف سے کوئی امانت دوں اور اس کو کہوں خرچ کر، لیکن ذرا دھیان سے کرنا، بسم اللہ، تو اس کا مطلب یہ فضول خرچی سے بچیں گے، مولا کے پیسے ہیں، ان کا صدقہ میری کھانا ضرورت ہے، میں وہ کھاؤں، میرا پہننا ضرورت ہے، وہ میں پہنوں، ہاں میں کوشش کروں گا کھانے میں بھی احتیاط برتوں گا، ضروری نہیں نفس میرا کہہ ہے گوشت کھا، اگر دال سے گزارا ہوتا ہے تو وہ بہت اچھا ہے، مولا کے پیسے بچ جائیں، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ رہتی کا ایک جملہ یاد آ گیا، جب ایک بڑا کمال ہے، کسی شاعر نے لکھا، پورا شعر تو یاد نہیں علی شہزاد لیکن کمال کر گیا، وہ کہتا ہے منافقاں دی کڑھائی تو قبلہ علی دے لنگر دی دال ٹھیک بھائی یہاں 100 خرچ ہو رہا ہے، میں کوشش کر کے 50 روپے خرچ کروں، اپنے اوپر ہونے لگا میں 50 روپے امام کے وہ بچاؤں، ایک مہینہ ٹرائی کر، پھر دیکھ کمال کتنا ہے۔ حضور جوید اگر سرکار کے لیے بچانا شروع کر دی اور سرکار کے نام ہر چیز لگانا شروع کر دی، خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، مجتبیٰ کی قسم، صاحب الزمان تب شہزادوں کی قسم، پھر محشر کے دن خدا تجھ سے پوچھے گا نہیں کہاں خرچ کیا، اتنی بڑی قسم دے گا، کیا کرنا، سبحان اللہ، دے کے پوچھے گا 10 پہ پتر کتے کتے کی تصدیق،
क्योंकि तू उन्होंने अपना बड़ा बैठा है ना जी जी मेरा 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 तो है ही नहीं वो तो मेरी मौला का है मेहरबानी जब पैसे सरकार के नाम के इकट्ठे हो जाए कोशिश कर मौला के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए कुछ न कुछ शुरू कर बिस्मिल्लाह चाहे पूरे महीने की बचत 500 हो 1.25 लाख है बहुत है क्योंकि वो नीयतें देखते हैं नीयत तो देखते नहीं ही नहीं नहीं हमने यहाँ पति पति बनाए हैं करोड़पति लखपति खरबपति ये पति बुद्धि यही रह जाने हैं असल वही रहेगा जो मौला पति हो की बात कर रहा हूँ मैं मानिएगा मौला पति होगा जो हजपति होगा जो सचपति होगा बाकी यही पति बुद्धि रह जाए कहाँ किसी के काम आई है जमीनें किसी के काम आई है जायदाद जब एक बंदे बड़े कमाल हैं आज एक तोहफा और देना चाहता हूँ कहलवाते हैं हम शिया हजूर वाला गौर फरमाइएगा मैं आराम से कहता हूँ ताकि आप तक बात पहुँचे कहलवाते हैं हम शिया ख्वाहिशात हैं फिरौन वाली आक़िबत चाहिए मूसा वाली जो वाला कह गया जो मेरा सलाम है मेहरबानी कहलवाते वली वाले लाख है करोड़ों करोड़ है 10 करोड़ 10 करोड़ है 100 करोड़ 100 करोड़ है 10 खरबों ख्वाहिशात फिरौन वाली चाहते हैं आखिर में आक़िबत यानी जो छुटकारा है वो मूसा वाला हो कोशिश कर ख्वाहिशात भी फिरौन वाली ना रख ख्वाहिशात भी मूसा वाली जुमला था सुनिए कैसे बचे सरकार के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए खर्च कर उनका दिया उन पे लगा बगैर एहसान के कि आपकी मेहरबानी आपका दिया था मेरी क्या होता उन पे स्टिकर छपवा बैनर छपवा ज़माने के इमाम के हवाले से जो 11 इमामों ने फरमान सादर फरमाया ताकि मुमीन के ज़हनों को तैयार किया जाए आने वाले के जहाँ महफिल नहीं होती वहाँ महफिलें करा लोगों में पढ़ने वालों को पहुंचाओ सिर्फ टॉपिक इमाम ज़माना है क्यों इमाम ज़माने जब इसलिए मेरी बच्चियां भी सुन रही हैं बेटा इसलिए इमाम ज़माना टॉपिक है क्योंकि हम सुन रहे हैं फिजा कैसी थी हम सुन रहे हैं सलमान कैसा था क्या यही सुनते रहेंगे नहीं वो अगर थे तो मैं भी सलमान बन के दिखाऊंगा मैं भी फिजा बन के दिखाऊंगी असल मकसद ये है यही मैं उस फिजा को सलाम करूंगा भाई उसको भी सलाम करना है लेकिन मैंने भी तो बन के दिखाना है मेरी भी तो ड्यूटी है ना बेटा शाबाश मेरे बच्चे और फरमाने का शुक्रिया तो हजूर कोशिश का इसके अलावा पता कर खामोशी से किसी समझदार बंदे किस कदम वाले घर में बच्ची बैठी है जिसका जहेज नहीं है जिसकी वजह से रुकते रुकी है कोशिश कर एक छोटा सा रिक्शा बना के बाबा जी कोई बात नहीं बैठ जाओ बेटा छोटा सा रिक्शा बना के स्त्री है पंखा है कोई छोटी सी बेडशीटें हैं सिलाई मशीन है अगर ज्यादा सरकार का सदका इकट्ठा हो गया छोटा सा फ्रिज है इकट्ठा करके खुद न जाना अगले को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा चुप करके किसी को भेजना यार वो सामने दरवाजा है अलम वाला घर है बच्ची बैठी है जहेज नहीं है चुप करके दिया वो पूछे किसने दिया कहना इमाम ज़माना बाबा 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 कुल्ले ईमान नारे हाज़री मेहरबानी यार और उनको जाके कहना कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने भेजा है और कोशिश करे जो बेटी हमारी बहन हमारी जो जिंदगी का नया आगाज करे उसको कह दो वो अपनी जिंदगी इमाम के नाम वक्फ करे बाबा बाबा क्योंकि सरकार ने भेजा है जिसका खाओ उसका गाओ बाबा हम लोग इस दौर में जो जी रहे हैं सरकार का सदका था मासूम ने फरमाया हर दौर में हर जीरो जमाने के इमाम का सदका था जिसका खाओ उसी का गाओ लो जी इसके अलावा बहुत सारे काम हैं मार्फत इमाम के लिए अपने आँख को संभाल ज़बान संभाल आँख संभाल हाथ संभाल पेट संभाल पाँव संभाल जैसे अब कैसे पाँव चल के जा रहे हैं ना इतने मुकद्दस मकान बीबी के हरम पे जाने वाले पाँव वादा करें ये इश्क बरकरार रहेगा हराम पे नहीं जाएंगे बाबा 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 वरना चलने का फायदा नहीं है
लो जी, इस पे और भी गुफ्तगू करूंगा, आपके साथ बैठते हैं। कोई और किसी दोस्त का सवाल हो तो बिस्मिल्लाह। बेटा आपने कुछ पूछना? नहीं, आपका कोई और सवाल तो नहीं है? चलिए जवेद भाई, आपके मजमे में से पूछो यार, आपस में बैठे हैं, कोई वो नहीं है, कोई मतलब आपस में बैठे हैं। सरकारी जमाना पे कुछ सवाल है तो बिस्मिल्लाह पूछो जी। ये देखे ना माशाल्लाह जी, ये करीब कीजिए, बोलिए। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत जी बारहवें आका के फरमान के मुताबिक वाह, नाम क्या आपका? हसन। हसन भाई कहाँ से आए हैं? फैसलाबाद से। जी जी, मैं वैसे में वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना। गांव का नाम? खानवाना 248। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के मुताबिक जी, इसमें कोई लम्बी हो गई थी 11 मिनट हो गए। दूसरी राय है ही नहीं। विलायत के बगैर अगर मोहम्मद की रिसालत को खतरा है तो तेरी मेरी नमाज तो सेकंड सवाल तूने हसन किया, बड़े समझदारों वाला, बड़े समझदार वाला। अब जवाब मैंने बहुत बड़ा नहीं देना, एक ही जुमला कहना है। वाह वाह वाह। सरकार की विलायत कबूल करने वालों, बेटियां जरा सुनना बाबा, सरकार की विलायत यानी अली बादशाह की विलायत कबूल करने वाले के लिए इमाम ज़माना ने एक मैसेज दिया है। सरकार फरमाते हैं जैसे हम चाहते हैं वैसे बन जा, हमें मिलने ना आना, हम तुझे मिलने खुद आएंगे। वाह 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 मेहरबानी। जवाब दिया और इतना ही काफी। बिस्मिल्लाह अकल वालों के लिए इशारा, बिस्मिल्लाह। समझने वालों के लिए बहुत बड़ा पैगाम। सरकार फरमाते हैं हम तुम्हें मिलने खुद आएंगे। इसका मतलब अभी तक जमाने के इमाम तेरे से मुलाकात नहीं कर सके तो महसूस करना अभी तू अपने आप को विलायत के काबिल बना ही नहीं सका। विलायत सिर्फ खाली अली वलीउल्लाह कहने का नाम नहीं, विलायत यकीन और शुक्र का नाम है। यकीन पैदा कर, फिर शुक्र रख, फिर पाक बन, सरकार खुद मिल रहा है। और यकीन जानिए, हम इमाम को नहीं मिलना चाहते, सरकार करम फरमाना चाहते, हम नहीं मिलना चाहते। हमारी आंखों के आगे पर्दा है, वरना इमाम अपनों से तो पर्दा नहीं होता। हम छोटी छोटी कोताहियां करके अपनी आंखों के आगे पर्दे बनाए बैठे। सरकार हमारे अपने हैं, और यकीन कीजिए हमारे सबसे बड़े खैर खा हैं। वाह 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 वाह। कायनात में इन बापू ने, इन बेटू ने, इन भाइयों ने, इन बहनों ने, सब ने मैयत कह के छोड़ देना है। कोई इससे बड़ा खैर का होगा जो कब्र में भी आके कहेगा घबराना हमें। इससे भी बड़ा खैर का होगा जो कब्र पे आके कहेगा, कब्र में भी और कब्र पे भी, उठ मैं आ गया। वाह 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 वाह। आज से 200-250 साल पहले कोई एक मोमिन फौत हुए थे, उनकी नस्लें कोई खत्म ही हो गई, पता ही नहीं है। किसी को पता है वो कौन सी कब्र में कौन सा मोमिन सोया है? नहीं पता, मगर जमाने के इमाम को पता है। इसी तरह ये भी तुम्हें भूल जाएंगे, जिनको अपना अपना कहते हो ना, ये भी तुम्हें भूल जाएंगे। सांस खत्म, महीना 2 महीने 6 महीने साल जब भूल गए कौन था आया था। कोई अपनी अपनी में पड़ जाएगा, कोई भूल जाए घबरा ना, काम ऐसे कर वो ना भुलाए। सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। आप थक तो नहीं गए? नहीं नहीं। अच्छा कोई और सवाल? बिस्मिल्लाह। थक जाओ मुझे बता देना, तबरुक रेडी है। छोटी बेटा उनको कहो डोंगों में सालन डालो, शाबियों में रोटियां डालो, प्लेटें निकालो, बेटा उनको कह के आओ जो बाजी अंदर ड्यूटी कर रही है। अच्छा पूछो बाबा, जब तक कोई सवाल और है तो बिस्मिल्लाह पूछो। बारिश आ गई वरना उधर बैठते। हाँ मैं आपके इलाके में एक अच्छा माली हूँ ना, तजुर्बा का वो वकील का। शर्म बड़ी बात है, शर्म वाली बात तो है नहीं, आपस में बैठे हुए जी। नहीं नहीं, बीमारी मदीना शहजादी का नहीं हुआ।
आपसे नहीं हुआ, मुझे अकबर की फिराक में बड़ी जल्दी हो गई। आपसे नहीं हुआ, आपने बीबी का तस्करा छेड़ दिया। चलो एक दो जुमला मैं कह दिया। सरकारी अकबर जो मदीने से रुखसत होने लगे ना, शारों ने रहने वालों के साथ आखिरी विदा किया। अब हम जा रहे हैं। शहजादी ने सरकारी अकबर को अपने साथ बिठाया। फरमाती मेरी माँ कह के गई थी, ये तेरा भाई है, मैं तेरे हिस्से की बहन हूँ। अकबर तुझे पता है मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। अकबर मैं तेरे फिराक में मर जाऊंगी। सजा फरमाती है मैं तुझे बुला लूंगा, जब मेरा अक्त होगा मैं तुझे बुला लूंगा। अकबर फिर भी कोई ऐसी निशानी लगा के जा जिसके सहारे मैं जिंदा रहूं। सरकारी अकबर ने अपने दोनों पांव लगाए थे। बीबी जब तक जिंदा रही इसी निशानी के सहारे जिंदा रही। 10 मुहर्रम का दिन जब गुजर गया ना, इस शहजादी ने अब्बास की मां को कहा, अम्मा मैंने एक अजीब मंजर देखा है। मैंने देखा एक खून का दरिया है। मैंने देखा मेरा भाई अकबर ज़मीन पे नहीं दरिया में तैर रहा है। नाने के मजार पे जाके कहा, नाना मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे लगता है मेरे अकबर को कुछ हो ना गया हो। एक खत लिखा बीबी ने, खत लिखा है किसी मलक की ड्यूटी लगी थी, किसी सवार की ड्यूटी लगी थी, या कोई सवार बन के गया था। ये भी एक राज है। इमाम हुसैन बादशाह ऐन आखिरी सजदे के टाइम उससे एक लम्हा या चंद लम्हे पहले एक शख्स ने इमाम हुसैन को सलाम किया, मेरा सलाम आप पर है रसूल के फजल। इमाम हुसैन बादशाह कहते हैं ये तो मुझे सलाम नहीं करते, तू कौन है? ये भी हमारे तक पैगाम पहुंचाना था, वरना सरकार सब तो कौन है ये बदबख्त तो मुझे सलाम भी नहीं करते हैं। अर्ज करते हैं मैं आपके लिए कासिद बन के आया हूँ, आपकी बेटी का मेरे पास खत है। ये खत कहने के बाद इमाम हुसैन के कदमों को चूमता है। जो ही कदमों को चूमा ना, सरकार ने पूछा कोई खास राज है? कहते आपकी बेटी ने कहा था मेरे बाबा के कदम भी चूमना, मेरे बाबा के हाथ भी चूमना, आपकी बेटी ने कहा था। अचानक ये उठा, जवेद के दाएं देखता है, बाएं देखता है, ये रिस्क खा के गिर पड़ता है। सरकार ने इसको हाथ फेर के उठाया, उठा। सरकार पूछते क्या हुआ? कहते आपकी बेटी ने कहा था जहाँ मेरे बाबा बैठे होंगे ना, दाई तरफ चाचा अब्बास होंगे, बाई तरफ अकबर होंगे, कहीं औनो मोहम्मद होंगे, कहीं कासिम खड़े होंगे, यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा। मैं इसलिए रिस्क खा के गिर पड़ा। बेटी ने कहा था यहाँ कोई होगा। सरकार फरमाते वो मक्तन में निगाह का है, वो देख सारे सोए पड़े हैं। सरकार ने खत खोला, अजीब मंजर। तो बस एक ही जुमला कहूंगा, रोते रहो और बीबी को गुस्सा देने जाना और बीबी को कहना बीबी तेरे घर का बड़ा अरमान है, कोशिश करना अपने लिए कुछ न मांगना, अदादार बन के जा रहे। बीबी को कहना तो सफर बड़ा करके आई है। बीबी पता नहीं कहाँ से चली थी, कैसे चली थी, हम थोड़ा सा सफर करके हम थक गए हैं, पता नहीं कितने 100 नहीं कितने 1000 मील सफर तय करके आई है। बीबी पता नहीं रास्तों में किसी ने तेरे से पानी भी पूछा होगा, बीबी किसी ने तेरे से पता नहीं खाना भी पूछा होगा। बीबी हम तुझे दुआ कर रहे हैं, तेरा पूरा घर वीरान है, दुआ कर अल्लाह करे तेरा वारिस आया। उम्मत से पूछे तो सही मेरी दादियों पर कसूर क्या? सरकारी हुसैन ने खत निकाला, खत लेके पढ़ने लगे। इमाम हुसैन बादशाह, सबर का बादशाह, सबर जो एक जुमला बड़ा अलीशादार खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपकी ज़रीफ़ा बेटी का सलाम। मैंने जहाँ से बात शुरू की थी मैं वहीं में बात ले आया। मेहरबानी आपकी ज़रीफ़ा बेटी का सलाम। सबर का समंदर रोना शुरू कर गया। मैं तो जवान छोड़ के आया था, बच्ची छोड़ के आया था ज़रीफ़ा। अल्लाह जाने अकबर का फिराक कितना खा गया कि आज वो अपने आप को ज़रीफ़ा कह रही है। मेरा चचा अब्बास को सलाम,
میرا اکبر کو سلام، میرا اصغر کو سلام. میں نے اس قاصد کے ہاتھ اصغر کے کرتے بھیجے ہیں. اگر ہو سکے اصغر کو ضرور پہنانا. میں زیادہ نہیں پڑھ سکوں گا، بس میں یہی مکمل کرنے لگا ہوں. سرکار نے جب یہ جملہ پڑھا، سرکار رو کے کہتے ہیں بیمار مدینہ اصغر کو بھی دفنا بیٹھا ہوں. اصغر کو بھی میں ریت میں ذوالفقار کے ذریعے قبر کھود کے دفنا بیٹھا. اللہ اکبر. رب العزیز ان روتی آنکھوں سے دعا مانگو. خدا عالم یہ جتنے عزادار